Is the whiteboard visible to all of you? Yes. Yes, sir. Okay. चलो तब तक लास्ट लेक्चर में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो हम लोगों ने चैप्टर शुरू किया था उसका जितना कंटेंट हुआ है अपना तुम लोगों ने जितना नोट करके लिया है फटाफट स्टार्ट टू रिफर. टेक मैक्स टू मैक्स 5 मिनट्स, ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट में लास्ट लेक्चर तक पीरियोडिक टेबल में जितना कुछ कंटेंट हुआ है अपना चलो सब रिफर करना शुरू कर दो. I will go on asking the questions on the same. सर क्या करना था क्योंकि मेरा फोन स्विच ऑफ हो गया था तो मैंने सुना नहीं आपने क्या बोला. पीरियोडिक टेबल का अभी तक मतलब लास्ट लेक्चर तक जितना कुछ कंटेंट हुआ है वो पूरा रिफर करने के लिए बोला है मैंने. ओके. जॉयसन डन. Yes. प्रणीत, दर्शन, दिविशा, are you finished? Yes, sir. अंशिका डन. Tanvi done. Whatever content we did till the last lecture, have you referred it all? Tanvi. And Tanvi, your camera adjustment is not proper. I can see just your headphones, not you. Okay, Joyson, let us start with you. Yes, sir. Joyson, you please tell me minimum 2 to 3 points regarding long form of modern periodic table. What does it contains? Long form of modern periodic table. कैसे explain कर पाओगे? Yes, Joyson. मैंने पूछा लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कैसे एक्सप्लेन करोगे? ऋषिका. यस सर. मैं एक बोलूँ. एक याद आया. The elements are arranged in their order in the order of their atomic masses. एक सेकंड. Not atomic masses. They have been arranged in according to their increasing atomic numbers. Oh yes. Second point. Divisha, can you please tell me minimum 2 to 3 points regarding long form of modern periodic table? You are not audible. You are not audible. हाँ. Yes. हाँ, अभी बोलो. वो जो डायग्राम हम लोगों ने ड्रॉ करके लिया था उस डायग्राम को ही तुम्हें एक्सप्लेन करना है. And group हाँ. A. Divisha, you tell me how many horizontal series are there? Horizontal. हाँ.
Yes. uh, 7 horizontal series and And 18 vertical groups. groups. Those 18 vertical groups are called as what? 18 vertical groups. Sorry, 18 vertical lines are called as groups. Sorry. Yes. And 7 horizontal lines are called as Periods. periods. The first period consists of how many elements? First period, 2. Which one? Hydrogen and helium. Hydrogen and helium. Correct. Joyson, you tell me the next question. Yes. Joyson, first group elements belonging to first group are called as what? First group. Yes. Alkali metals. Yes. Alkali metals. Correct. Rishika, you tell me last Yes, group sir. elements, group 18 elements are known as what? Noble gases. Noble gases, or they are also called as Inert gases. inert gases. Correct. Fine. Anshika. Hello, Anshika. Can you hear me? Hello, Anshika. Jyotika, can you hear me? Yes, sir. Jyotika, you tell me how many blocks are there in modern periodic table? 4. Which one? S block, D block, P block, and F block. Where is the position of F block? In left side of F, periodic F, table. F block, F block. Block. Ah. It is situated in downside of periodic table. Yes, at the very bottom of the table. Correct? Yes, sir. How many series are there in F block elements? Jyotika, Yes. how many series are there in F block elements? 2. 2. The first series is called as, Lanthanide, and second one is called as actinide. actinides. Pranit, can you hear me? Hello, Pranit. Sarvesh, can you hear me? Yes, sir. Sarvesh, you tell me where is the position of D block? Between S block and P block. Very good. D block elements are called as, Transition elements. F block elements are called as F. F. Inner transition elements. Group 2 elements are called as, Group 2 elements. yes. Jaldi. Group 2 elements are called as alkaline earth elements. Alkaline earth elements. Yes, sir. चलो म्यूट कर लो. ओके. दिविशा, अपना लास्ट टॉपिक क्या हुआ था लिखकर? लास्ट टाइम हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखा था, करेक्ट? Yes. और उसके बाद एक कुछ तो हुआ था. वो क्या हुआ था? Atomic or ionic एटॉमिक radius. आयनिक रेडियस. Yes. ओके, ठीक है. उसके बाद लेट मी ओपन द पीडीएफ ऑफ योर टेक्स्ट बुक. साइंस 1. वैसे तो अपने पीरियोडिक टेबल के अभी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज डाउन द ग्रुप एंड अलोंग द पीरियड कैसे वेरी होती है, सिर्फ यही हमें पढ़ना है.
अच्छा, meanwhile, Divisha, you tell me before modern periodic table, who prepared the very first table? So could you repeat? Yes, before modern periodic table, who prepared the very first element table? Mendeleev? Mendeleev. उसने 3 empty spaces छोड़े थे दिविशा, करेक्ट? Yes. What was the names given to those elements by Mendeleev? Eka boron, Eka aluminium, and Eka silicon. Yes. Rishika, Yes, sir. Rishika, these 3 elements, Eka boron, Eka aluminum, and Eka silicon, when these elements were discovered later, then they were named as? Scandium, gallium, and germanium. Very good. Scandium, gallium, and germanium. Okay. हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में ही डोबेराइनर ट्रायड का भी एक रूल शायद से सीखा था, या उससे पहले वाले लेक्चर में, करेक्ट? हाँ, ऋषिका, ट्रायड का रूल बता सकती हो क्या था? यस सर, उसमें 3 एलिमेंट्स लेते हैं जिनके केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होते हैं, और फिर फर्स्ट एंड थर्ड को ऐड करके और उसको 2 से डिवाइड करके जो आता है वो बीच का जो मिडल वाला एलिमेंट होता है उसका एटॉमिक मास या नंबर होता है. यस, एटॉमिक मास. नंबर नहीं, एटॉमिक मास ही होता है, नंबर नहीं, एटॉमिक मास ही होता है. ओके सर. ठीक. ओके, अभी अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और एटॉमिक साइज तो हुआ है. अब मेटालिक, नॉन मेटालिक कैरेक्टर और बाकी सारे जो प्रॉपर्टीज है, जो कि ना तुम्हें, मतलब मेरे पास जो पीडीएफ फाइल है उसमें पेज नंबर 26 में तुम्हें मिल रहा है. मुझे पेज नंबर 26 पे देखो, शायद से एक डायग्राम दिया है सभी. फिगर 2.10 मिला सबको? फिगर 2.10. Yes, sir. यस सर. उसमें देखो उन्होंने लाइट ब्लू कलर में मेटल्स बताए हैं, देन टर्मरिक येलो, लाइट टर्मरिक येलो कलर में मेटलॉइड जिगजैग लाइन पे, और बीच कलर में नॉन मेटल्स बताए हैं. तो मुझे ये बोलो सबसे पहले तो, उस पूरे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ज्यादा से ज्यादा एलिमेंट्स मेटल्स है, नॉन मेटल्स है, या मेटलॉइड्स है? Metals. They are all Metals. yes, they are metals. zigzag लाइन पे जितने सारे एलिमेंट्स है वो सारे मेटलॉइड्स है, और zigzag लाइन के राइट साइड में जितने सारे एलिमेंट्स है वो सब नॉन मेटल्स है, करेक्ट? तो इस तरीके से अब जरा व्हाइट बोर्ड पे बता देता हूँ. Just see on board. ज्यादा है. Yes, मेटल ज्यादा है. देखो, अगर हम लोग अपना रफ लेआउट में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का रफ लेआउट अगर ड्रॉ करता हूं, तो वो है ना, हमें कुछ ऐसे दिखाई देगा, समथिंग लाइक दिस, करेक्ट? ये अपना सिर्फ लेआउट, मतलब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कुछ ऐसे ही है. ये जो है ये अपना एस ब्लॉक है, ये पी ब्लॉक है, ये डी ब्लॉक है, और ये एफ ब्लॉक है. और अगर हम लोग एलिमेंट्स के बारे में सोचते हैं तो देखो, एस ब्लॉक में जितने सारे एलिमेंट्स है उन सबको कहा जाता है नॉर्मल एलिमेंट्स, एंड दे आर ऑल मेटल्स. ठीक है, ये नॉर्मल एलिमेंट्स है एंड दे आर ऑल मेटल्स. डी ब्लॉक में तो हमें मालूम है दीज आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, करेक्ट? ट्रांजिशन एलिमेंट्स, या फिर उनको
ट्रांजिशन मेटल्स भी कहा जाता है। तो बेसिकली these elements are metals only, उनको नाम क्या है स्पेसिफिकली, ट्रांजिशन मेटल्स। फिर इन दोनों को क्या कहा जाता है, कुल मिलाकर इनर ट्रांजिशन मेटल्स। एक्चुअली इनको ही और एक नाम है बच्चों, these are also called as rare earth metals or elements. Why these are rare earth metals or rare earth element? Because these inner transition elements, लैंथेनम की सीरीज और एक्टिनियम की सीरीज, ये अर्थ के क्रस्ट में ही मिलते हैं, लेकिन उनका प्रपोर्शन या उनकी क्वांटिटी बहुत ही कम होती है, इसलिए दे फाउंड वेरी रेयरली इन द क्रस्ट ऑफ द अर्थ, हेंस दे आर कॉल्ड एज रेयर अर्थ एलिमेंट्स। ठीक है, सिर्फ पी ये अकेला ऐसा ब्लॉक है मॉडर्न टेबल में जिसमें हमें zigzag लाइन पे मेटलॉइड्स मिलते हैं। towards the left of the zigzag line are all metals and over here there are non-metals। तो तुम लोग अभी ये बाद में ड्रॉ भी करके ले सकते हो। देखो S ब्लॉक, D ब्लॉक, F ब्लॉक, सारे के सारे कौन से टाइप के एलिमेंट्स है, दे आर ऑल मेटल्स। सिर्फ T ये अकेला ऐसा ब्लॉक है बच्चों जिसमें हमें तीनों टाइप के एलिमेंट्स मिलेंगे, मेटल्स भी है, नॉन मेटल्स भी है और मेटलॉइड्स भी है। पहले ये पोजीशन सबकी सभी को समझ में आया है, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड कहां कहां पर मिलेंगे वो, वेरी क्लियर Yes, एवरीवन? sir. यस। पहले ये रफ लेआउट जैसे मैंने ड्रॉ किया है वैसे ही फटाफट ड्रॉ करते चलो। अभी नेक्स्ट जो हमें प्रॉपर्टी सीखनी है वो है इसी से रिलेटेड, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर। तो राइट डाउन नेक्स्ट प्रॉपर्टी, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर। राइट डाउन टॉपिक, metallic and non-metallic character. Start to write in that. As we move along the period, as we move along the period, metallic character decreases slowly. Metallic character decreases slowly and non-metallic character gradually increases, and non-metallic character gradually increases. Okay, in next para, on moving down the group, metallic character increases, and non-metallic character decreases, and non-metallic character decreases. फिनिश। अब देखो मैं ना कुछ एलिमेंट्स लिखता हूं, तुम्हें तुम्हारे टेक्स्ट बुक में जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिया है कलरफुल, वो तुम्हारे सामने रखना है। ठीक है, सबसे पहले तो मैं ये लिखता हूं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांशियम।
फिर दूसरा है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। उसके बाद हम लोग लिखेंगे बोरॉन, एल्यूमिनियम, देन गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। फिर है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। ये इतने एलिमेंट्स देखो तुम्हें कहां कहां पर मिल रहे हैं बच्चों तरह। तुम्हारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कलरफुल, देखो मैं ग्रुप नंबर लिखता हूं, दिस इज ग्रुप नंबर 1, नंबर 2, ग्रुप नंबर 13, 14 एंड एलिमेंट्स है, ठीक है। अब स्पेशली 13, 14, 15 में देखते हैं कैसे। 13 में बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, these are all non-metals, ठीक है। एल्यूमिनियम is metal, gallium is metalloid, indium and thallium again they are metals, silicon and germanium these are metalloids, tin and lead are metals, nitrogen and phosphorus metals, arsenic and antimony are metals, and bismuth is purely a metal. ये मैंने उनका नेचर देखो, सबको दिख रहा है क्लियरली? यस। लोगों ने अभी जो नोटबुक में नोट करके लिया है स्टेटमेंट, जब हम लोग अलोंग द पीरियड जा रहे हैं और डाउन द ग्रुप आ रहे हैं, तो नेचर ऑफ एलिमेंट कैसे कैसे चेंज हो रहा है देखो। अपना पहला स्टेटमेंट क्या है? इफ वी आर मूविंग अलोंग द पीरियड, ऐसे लिखा है हम लोगों ने नोटबुक में सबसे पहला स्टेटमेंट, ऑन मूविंग अलोंग पीरियड, करेक्ट। कौन सा कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है? metallic character. एक सेकेंड, मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। फिर से लिख रहा हूं मैं, मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस, नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। ये ऐसे हो रहा है जब हम लोग लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, दैट इज समथिंग कॉल्ड एज अलोंग द पीरियड। अगर हम लोग डाउन द ग्रुप आ रहे हैं तो देखो, मेटलॉइड एंड मेटल्स, non-metal, metalloids, metal, non-metal, metalloids and metal. So जब हम लोग डाउन द ग्रुप आ रहे हैं, non-metallic character decreases and metallic character increases. Very clear? ये क्या हो रहा है वो? Everyone? Yes. ऋषिका, समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes. Understood? Yes. प्रणीत, आकांक्षा, हेलो एवरीवन, सर्वे अंडरस्टूड? ये बच्चे क्या सोच रहे थे? अंशिका का रिप्लाई आया, ओके, शी माइट बी हैविंग सम इंटरनेट इशू, कनेक्शन इशू। तन्वी को किधर? ज्योतिका, प्रियंका, Yes, sir. अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. हा, आकाश साहेब नेमकं काय रिपीट करायचंय ते सांगा जरा.
आकाश, आई सॉ योर मैसेज सर, रिपीट करो प्लीज। लेकिन क्या रिपीट करना है, कौन सा टॉपिक? लास्ट वन तो क्या है, जो मैंने तुम्हें ग्रुप 13, 14 और 15 का ये जो राइट साइड में जो डायग्राम दिया है, उन एलिमेंट्स का नेचर देखो। जब हम लोग ग्रुप में नीचे आ रहे हैं तो नॉन मेटल से लेकर मेटल्स तक नेचर चेंज हो रहा है, चाहे वो ग्रुप 13 हो, 14 हो या फिर ग्रुप 15 हो। लेकिन इसका मतलब जर्नी क्या लिखा हम लोगों ने, डाउन द ग्रुप आते वक्त नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है और मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। लेकिन जब हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं अलोंग द पीरियड जाते वक्त मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ते जाता है। तो किसी भी ग्रुप में देखो तुम लोग, ये जो है, इफ यू रिमेंबर वेल, ग्रुप 1 का मतलब क्या होता है, दे आर ऑल अल्कली मेटल्स, करेक्ट, एक्सेप्ट हाइड्रोजन ये नॉन मेटल है। लेकिन लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम, ये सब के सब क्या है, दे आर ऑल मेटल्स। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोन्शियम, बेरियम, दीज आर ऑल आल्सो मेटल्स, ठीक है। लेकिन सेकेंड पीरियड देखो, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये अपना सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है। तो लिथियम, बेरिलियम, दीज आर ऑल मेटल्स। बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, दीज आर ऑल नॉन मेटल्स। तो देखो कैसे जा रहे हैं ट्रांजिशन, लेफ्ट टू राइट जाते वक्त पीरियोडिक टेबल में मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। इज इट क्लियर एवरीवन नाउ? Yes. Yes. Now, the next one is, अभी तुम्हें कैसे आएगा देखो, तुम्हारे टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस में जरा हम लोग जाते हैं। सब लोग जरा टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस ओपन करो। सपोज मैंने तुम्हें एक क्वेश्चन दिया कि सपोज मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, आइडेंटिफाई एलिमेंट having configuration 284 and it is colloid in nature. Identify the group number. ये अपना क्वेश्चन है, ठीक है। अब पहले तो इसे सॉल्व कैसे करते हैं ना वो देखो, सब लोग समझ के लो, बाद में उसे कॉपी करो। देखो अब तुम्हें क्या है कि कॉन्फ़िगरेशन दिया है, ठीक है, 284 ये कॉन्फ़िगरेशन दिया है तुम्हें। तो सबसे पहले गिवन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट is equal to 284, बराबर, and therefore number of electrons is equal to, कितने इलेक्ट्रॉन्स है टोटल, 2 + 8 + 4 that is equal to 14, बराबर। अब ये 14 है तो ये कौन सा एलिमेंट रहेगा, इफ यू सी, सबसे पहले तो इसमें 3 शेल्स है, बराबर, 3 शेल है। So we can write
containing 3 shells, it must belong to third period. ये ड्यूरेशन क्या है? देखो मैंने क्या सेट किया है, जितने शेल्स रहेंगे उसी पीरियड का वो एलिमेंट रहेगा। मतलब तुम्हें क्या ढूंढना है? देखो थर्ड पीरियड तुम्हें ढूंढना है। तुम्हारे टेक्स्ट बुक में थर्ड पीरियड देखो कौन से एलिमेंट से स्टार्ट हो रहा है। थर्ड पीरियड कौन से एलिमेंट से स्टार्ट हो रहा है? सोडियम। सोडियम, करेक्ट। तो लेकिन सोडियम के लिए एटॉमिक नंबर आता है 11, तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर आना चाहिए 12, एल्यूमिनियम का आना चाहिए 13 और सिलिकॉन का आना चाहिए 14। ये देखो ये अपना मैच हो रहा है, और सिलिकॉन 14 के लिए कॉन्फ़िगरेशन ये आएगा 2,8,4, करेक्ट। इवन वो मेटलॉइड नेचर का है, ये भी दिया उन्होंने, इट इज मेटलॉइड इन नेचर। अभी हम लोगों ने देखा कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। कार्बन तो नॉन मेटल है, लेकिन सिलिकॉन, जर्मेनियम कैसे थे? मेटलॉइड नेचर के थे। मतलब ये भी अपना क्राइटेरिया मैच हो रहे हैं। तो आइडेंटिफाई द ग्रुप नंबर, उसका ग्रुप नंबर क्या आना चाहिए बच्चों? टेल मी। 14. ग्रुप नंबर 14. 14। Yes, that element belongs to group number 14. So we will write down at the end, this element is silicon and belongs to group 14. Okay, चलो ये कॉपी करो। पहले तो तुम्हें सबको एक क्वेश्चन कॉमन पूछता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखा जाता है? ये अभी सभी को मालूम है ना? यस सर। अच्छा, Yes, मुझे sir. बोलो फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे हमेशा? 2. सेकंड शेल में 8. 8। थर्ड शेल में 18. लेकिन 18 ये मैक्सिमम नंबर होता है, अदरवाइज अपनी कंडीशन क्या है? थर्ड शेल में ऑक्टेट कंप्लीट octet. होना चाहिए। यस, ओके। Yes. तो फिर ये क्वेश्चन होने के बाद तुम मुझे तुम्हारे टेक्स्ट बुक में देखो, क्वेश्चन नंबर 4 निकालो। 4, क्वेश्चन नंबर 4 निकालो। टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 4 मिला? उसमें है राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फॉलोइंग एलिमेंट्स, द गिवन एटॉमिक नंबर्स, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन। अब देखो मैं एक या दो क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करके बताता हूं। उन्होंने पहला जो लिखा है, ये कॉपी हुआ सबका? एवरीवन कॉपी हुआ ना? यस सर। देखो उन्होंने सबसे पहला जो क्वेश्चन लिखा है कि कौन से एलिमेंट दिए हैं उन्होंने, तो उन्होंने दिया है 3 लिथियम, उसके बाद है 14 सिलिकॉन, उसके बाद है 2 हीलियम, उसके बाद है 11 सोडियम एंड देन देयर इज 15 फॉस्फोरस। तो उन्होंने ये 3, 14, 2, 11, 15 ये सब क्या दिए हैं? हमें एटॉमिक नंबर्स दिए हैं, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर के बेसिस पर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। और उन्होंने क्या पूछा है? Each element belongs to 3, मतलब इन 5 एलिमेंट से एलिमेंट बिलोंग करते हैं। तो सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। देखो 3 लिथियम इलेक्ट्रॉन से, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा? 2,1, करेक्ट। फिर 14 सिलिकॉन के लिए कॉन्फ़िगरेशन बनेगा 2,8, 2 हीलियम, सिर्फ 2, यही कॉन्फ़िगरेशन। Na के लिए
2,8,1 सॉरी यहाँ पे 4 एंड फाइनली 15 फॉस्फोरस के लिए आना चाहिए 2,8,5। ठीक है, ये कॉन्फ़िगरेशन कैसे आए हैं सभी को समझ में आया है? Yes, आई sir. होप सो। Yes. यस, अभी उन्होंने पूछा है इन पांचों में से पीरियड 3 से कितने एलिमेंट बिलोंग करेंगे। तो तुम्हें क्या ढूंढना है, जैसे मैंने बताया था 3 शेल्स किसमें है, देखो सोडियम में है, फास्फोरस में है और सिलिकॉन में है। सो व्हाट वी कैन राइट एज 14 सिलिकॉन, 11 Na and 15 phosphorus stop. These shells, they belong to third period. तो लिथियम देखो 2 शेल्स है, तो ये सेकंड पीरियड से बिलोंग, और ये एक ही शेल है, मतलब ये फर्स्ट पीरियड बिलोंग करना चाहिए, तुम फर्स्ट भी कर सकते हो। समझ में आया? अभी पीरियड आइडेंटिफाई करते हैं तो नंबर ऑफ शेल्स में करने हैं, इसका मतलब वेरी क्लियर। Yes, sir. चलो ये Yes, sir. कॉपी करो, कॉपी करने से पहले ठीक से सुन के लो। तुम्हें क्वेश्चन नंबर 4 में से बी, देन ई, देन एफ एंड एच, बी, ई, एफ एंड एच, ये 4 करने हैं अभी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में राइट द नेम्स फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन। उसमें से अभी ए का मैं बता देता हूं, ठीक है। ए का सुनो क्या लिखा उन्होंने, द पीरियड विथ इलेक्ट्रॉन्स इन द शेल्स KLM, मतलब ऐसा पीरियड जिसमें के शेल में, एल शेल में और एम शेल में तीनों में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ऐसा कौन सा शेल रहेगा, मतलब कौन सा पीरियड रहेगा, थर्ड पीरियड। तो दैट इज पीरियड 3, जिसमें के शेल में भी इलेक्ट्रॉन्स है, एल में भी है और एम में भी है। वेरी क्लियर? हाँ, तो फिर तुम्हें क्वेश्चन नंबर 8 में ये तो हुआ, फिर G एंड H, G एंड H अभी सॉल्व करना है। चलो स्टार्ट यूर, ज्यादा से ज्यादा 7 to 8 मिनट्स मिलेंगे। चलो एक सेकंड ना, उसका भी क्वेश्चन अटेंड कर सकते हो। टॉपिक लिखो पहले, टॉपिक लिखो, that can be donated, that can be donated or accepted or accepted by an atom, by an atom of element, by an atom of element to complete the octet,
to complete the octet. अब इसका मतलब क्या होगा, देखो वैलेंसी क्या है। सपोज मैंने सोडियम 2A21, उसके बाद 2,4, उसके बाद सिलिकॉन 284, फिर आएगा नाइट्रोजन 2,5, सल्फर 2,8, एलिमेंट्स लिए हैं बच्चों। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें सोडियम आउटपुट में ऑक्साइड कम करना है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन्स देने की जरूरत, आई मीन 7 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। यस, अगर 7 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा सोचो अभी, अगर 7 गेन करने के बजाय एक लूज करना इजी काम होगा ना। तो कोई भी एटम प्रेफर करेगा, ज्यादा एनर्जी वाला है कम एनर्जी वाला, करेक्ट। मतलब इंस्टेड लूज उसकी होगी 1। कार्बन सिलिकॉन देखो, कार्बन का 4, अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन का है दोनों सिलिकॉन कंप्लीट होगा, कार्बन का कंप्लीट। रिवर्स देखो, अगर इसने 4 इलेक्ट्रॉन लूज किए और सिलिकॉन ने भी 4 इलेक्ट्रॉन लूज किए, तो क्या होगा, सिलिकॉन का ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है 4 लूज करने के बाद, कार्बन का ड्यूप्लेट कंप्लीट हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन की स्टेट कंप्लीट हो रही है, बराबर। इसलिए कार्बन और सिलिकॉन ना तो वो 4 इलेक्ट्रॉन लेंगे ना तो वो देंगे, ना कोई भी, मतलब कार्बन और सिलिकॉन दोनों ना तो लूज ना तो गेन करते, they will share the electrons, इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, इसलिए इनका बैलेंस बनता है 4। समझ है सबको क्वेश्चन? Yes, sir. यस। देखो हमें 5 Yes, sir. उसे कंप्लीशन के लिए करता है तो ड्यूप्लेट क्या करेगा, यूज करना इसलिए का बैलेंस 3 कौन तो बैलेंस है, जितने बनेगा 2। वेरी क्लियर? Yes, sir. Valency is number of electrons either donated or accepted to complete the octet। लेकिन कार्बन और सिलिकॉन के केस में देखो number of वैलेंसी है। अभी क्वेश्चन नंबर 4 में F और कौन सा बोला था, D, E, F and H, आई थिंक सो, करेक्ट। सर आपने डी नहीं बोला था।
देखो क्वेश्चन नंबर 4 में हाँ BEFH बोला था, करेक्ट। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में BEFH और क्वेश्चन नंबर 8 ऑल क्वेश्चंस। चलो अब भी कंप्लीट करना है। फर्स्ट, तुम्हें जितने क्वेश्चन आते हैं उतने अटेम्प्ट करो, अगर नहीं आता है तो वो जगह छोड़ दो, नेक्स्ट की तरफ मूव हो जाओ। सारे क्वेश्चन एक साथ शुरू हो जाएंगे। आई थिंक नाउ इट इज 4:10 होने को है, 4:10। 4:15 पे एग्जैक्टली 7 मिनट है अभी भी। वैसे 7 मिनट के बाद सारे क्वेश्चन एक साथ शुरू हो जाएंगे अपने। चलो स्टार्ट योर वर्क, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलो फिनिश्ड एवरीवन? ऋषिका डन? Yes, sir. ऋषिका डन? Yes, sir. Let me answer these all. तुम्हारे क्वेश्चन नंबर 4 जो बी क्वेश्चन है, पहले तो तुम सारे कॉन्फ़िगरेशन लिखने हैं तुम्हें, उसमें तो कभी क्रॉस चेक करते चलोगे तुम्हारे नोटबुक में तुम लोगों ने क्या क्या आंसर लिखे, ठीक है। 1H is equal to 1, 7 नाइट्रोजन 2,5 आएगा 7 नाइट्रोजन के लिए। उसके बाद दैट इज कैल्शियम, तो यह आ जाएगा 8,8,2 आ जाएगा 16 सल्फर 2,8,6 फिर आ जाएगा 4 2,2 and 18 AR that is 2,8,8। उन्होंने पूछा है which of these elements belong to second group। सेकेंड ग्रुप बोला है, ग्रुप नंबर वर्टिकल पूछा है, तो ग्रुप का मतलब ये है जिनके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये कैल्शियम और बेरिलियम, these two belong to group 2 as calcium and beryllium contain 2 electrons in outermost shell, they belong to group 2। ये तुम्हारा आंसर चाहिए, करेक्ट? Yes. यस। बाद कौन सा था? EFG which is the largest atom। सबका कॉन्फ़िगरेशन पहले लिखना है हमें, करेक्ट? तो कॉन्फ़िगरेशन के लिए सोडियम, phosphorus, chlorine and then silicon, magnesium। okay, 11 281 आ जाएगा। फॉस्फोरस के लिए 285 17 287 14 सिलिकॉन के लिए 284 and then B12 Mg that is 28। as you remember well, तो तीन शेल्स है, मतलब सारे थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स है। तो सबसे पहले आ जाएगा, फिर आ जाएगा मैग्नीशियम, 11 के बाद 12 के बाद एलिमेंट से के बाद एलिमेंट तो इलेक्ट्रॉनिक साइज क्या होती है?
होती है। सोडियम इज लार्जेस्ट, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस और क्लोरीन। तो सबसे लार्जेस्ट इज सोडियम। अगर आंसर गलत हुआ है तो कर लो। लार्जेस्ट वन इज सोडियम। atomic size for atomic radius increases. Finished. F में सॉरी कौन सा था डी ई और एच ना F. डी एच ओके। जी में देखो उनके कॉन्फ़िगरेशन देखो। सर G नहीं F. G आपने नहीं बोला था। हाँ ठीक है एफ है ना, तो उसमें पोटेशियम नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन 2,1 फिर आ जाएगा लिथियम भी है तो 2, फिर है अगेन 11 2,8,1 और बेरिलियम 4 2 तो अपने पोजीशन देखो कैसे आ जाएगी इन सब। ठीक है इनकी पोजीशन को इस तरीके से आ जाएगी। सबसे पहले लिथियम, उसके बाद बेरिलियम, उसके आगे आ जाएगा ये एटॉमिक नंबर, इसका एटॉमिक नंबर 4। सोडियम के नीचे आते हैं 11 इसमें 20 डाउन द जब आएंगे साइज इंक्रीजेस लिथियम सोडियम और पोटेशियम ऐसे होगा। लेकिन लॉन्ग पीरियड तो साइज होती है। जब लिथियम के कंपैरिजन में बेरिलियम छोटा है बराबर, तो हमने क्या पूछा है which of these atoms has smallest atomic radius, it must be beryllium। सबसे छोटा बेरिलियम होगा। समझ में आ रहा है एवरीवन? यस। के बाद हाईएस्ट नॉन मेटालिक कैरेक्टर लिथियम है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। एटॉमिक नंबर देखो 3, 6, 7, 8, 9। आज के ही लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा है, जब अलोंग द पीरियड जाते हैं तो मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। तो लिथियम तो अपना मेटल ही है, अल्कली मेटल है। सबसे हाईली नॉन मेटालिक मस्ट बी फ्लोरीन, हाईली नॉन मेटालिक। वेरी क्लियर? क्वेश्चन नंबर यस। क्वेश्चन नंबर 8 में एक तो मैंने बता दिया था group with valencies 0 group element 18 बोलते रहता हूँ। Third one, the family of non-metals having valency 1 is halogens, that is group 17. Group 17। उसके बाद मेरा लैपटॉप बंद हो गया। उसके बाद वाला जरा पढ़ो दिविशा, क्वेश्चन क्या है? फोर्थ वन। The family of metals having valency 1. Family of metals having valency 1 typically metals groups मुश्किल में एक इलेक्ट्रॉन आएगा उनके।
Rishika, what is the next one? The family of metals having valency 2. Family of metals having 2 is alkaline earth metals. 2. The metalloids in the second and third periods. Metalloids in second third period. Lloids. Second and third period. Third period में तो पीरियड में पूछा है. अच्छा, लिथियम बेरिलियम. It is boron and aluminium. Aluminium. Third period, sorry, boron and silicon. Last one, Divisha. Non-metals in the third period. Non-metals in the third period. That must be phosphorus, sulfur, and chlorine. Phosphorus, sulfur, and chlorine. Next one. So, Yes. argon also will come. No, argon is not. मतलब वो मेटल और नॉन मेटल में से कोई भी है तो वैसे वो नॉन मेटल, लेकिन वो एक्सक्लूसिव इनर्ट ऐसी है, उसे इंक्लूड नहीं करेंगे. Okay. हाँ. This was the last one. No, one more is there. Yes. Which one? पढ़ो. 2 elements having valency 4. 2 elements having valency 4, carbon and silicon. ओके. तो पीरियोडिक टेबल का कंटेंट सबको अच्छे से समझ में आया है? क्लियर? In next lecture we will revise this chapter in next, मतलब first 5 minutes, and then we shall start next chapter. Okay? फिर कौन से चैप्टर से चालू करोगे? स्कूल शुरू हुआ है क्या तुम लोगों का बच्चों? कल से. कल से शुरू है. हाँ ठीक है, तो फिर कल या परसों कौन सा चैप्टर शुरू हो रहा है वो देखो. अगर अपने नेक्स्ट लेक्चर तक कोई चैप्टर शुरू होता है स्कूल में तो हम लोग वही स्टार्ट करेंगे. हम लोग चैप्टर करेंगे साइंस 1 से. थैंक यू सो मच. हैव अ ग्रेट टाइम.